This might be the best YouTube video that you're gonna ever see on how to get more productive in life, ठीक है। और मैं तुम्हें ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि ये तरीका कर लो, वो कर लो, ये वजीफा पढ़ लो तो कुछ हो जाएगा। नो नो, आई एम एक्चुअली gonna tell you the source of the problem that you have and how do you waste time on the daily basis, ठीक है। And these are coming from my own life experiences, some things that I have removed and some things that I've added that have changed my life massively and brought so much results and so much productivity to it that I cannot even tell you. Watch this video till the end and I promise you on everything on my life that you're going to be a changed person and you're going to start being productive. I promise you. अगर वीडियो टेक के टाइम जाए हो ना तो नीचे गालियां लिखना मुझे, because that is impossible, because I have really good credibility, because मैं जब बात करता हूँ ना, मैं चीज़ों की सोर्स पे, मैं हमेशा प्रॉब्लम की सोर्स पे टारगेट करता हूँ, never on the symptoms, right? So again, मैं अपने चार्ट नहीं ना, मैं आपको एक बता रहा हूँ ताकि अब ये वीडियो पूरी देखे, अपनी credibility एक सेट करा था, right? But usually I make videos around how to get clients, how to learn high paying skills, how to research your market, and this is what my channel is about. But productivity is the biggest aspect of it. देखो, mindset तो है ही है. You can have the best mindset, but if you don't have a good routine, a good environment, then you're not gonna really thrive in life. So before we go any further, I want you guys to put your excuses on the side, ठीक है? हम सबकी लाइफ में excuses होते हैं. ओ मेरी 9 to 5 जॉब बहुत डिमांडिंग है, ओ मेरी शादी हुई हुई है, ओ मेरे बच्चे हैं, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है. Your excuses are not gonna do you any favor, because लाइफ में तो चीजें आती ही रहती हैं. आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब जिंदगी में एक प्रॉब्लम से आप निकलते हो तो आप दूसरी प्रॉब्लम में चले, तो द प्रॉब्लम्स विल नेवर एंड, राइट? आई मीन, आई एम अ मैरिड मैन, आई हैव अ बेबी, 2 साल का भी नहीं, 1.5 साल का बच्चा है, ही कॉन्स्टेंटली डिमांड्स अटेंशन. बट रिगार्डलेस ऑफ दैट एंड मी रनिंग ऑनलाइन बिजनेसेस, आई ऑलवेज फाइंड द टाइम टू डू so much shit. So like, time is not the issue, the way you manage that time is the issue. And I'm going to tell you about this concept which I have not come up with myself, I have got it from somewhere else, but मैं इसको आपको टाइम के perspective में बताऊंगा, which is a death by 1,000 cuts, right? And how you kill your productivity with that, ठीक है? Now what does that mean, death by 1,000 cuts, right? It's basically means कि किस तरह तुम अपनी लाइफ की छोटी छोटी हरकतें करते हो, you know, this is like a little paper cut to you, but you know, eventually keep on doing that and it becomes 1,000 cuts and it end up killing you and your time, right? Rather than like a straight dagger. और ये टर्म फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज होती है, you know, आपकी छोटी छोटी परचेजेस होती हैं, हम डेली कॉफी पीने जा रहे हो, कपड़ों के आइटम्स में होगी, खानों के आइटम्स में होगी, और आपको लगता है इतना इफेक्ट नहीं करता, बट 1,000 कट, छोटे छोटे कट पड़ते हैं, then eventually compounds to become something really big, right? So it's kind of the same concept. Now होता क्या है, ठीक है? होता ये कि जब आप ना, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने डेस्क पे होते हो, आप काम कर रहे होते हो, राइट? और आपको कोई भी छोटी सी चीज होती है, लाइक फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, आप खोलते हो, आप देखते हो कि तो हाँ यार, मैं देख के फौरन चेक करके इसको बंद कर दूंगा. Does that happen really? No. फोन पे चेक करके बंद कर दूंगा. या फिर आपने आपने उठ के पानी लेने जाना है, आप पानी लेने जाते हो दूसरे कमरे में, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि आपको रास्ते में कोई चीज याद आ जाती है, वो भी आप करने लग जाते हो, और एक और चेन इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है. और फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो बस मैं 20 मिनट से बाजार से होके आया, फिर मैं वापस आऊंगा, अपने काम पे बैठते हो. बट व्हाट यू डोंट रियलाइज इज दैट 20 minutes is not 20 minutes that you give to that activity, right? You are in the zone. Like, so for example, when you're in your zone, right, when you're in your space, आप उसको exit करके चाहे 5 मिनट की चीज करो, 10 मिनट की करो, it's not 5-10 मिनट की चीज, because when you go out to do that thing, you know, it consumes your energy and it takes space in your mental bandwidth, right? There's so many other things now you're thinking along the way and you're leaving your work on the side. और जब आप बीच में से 20-30 मिनट की ब्रेक लेके बाहर कहीं पे जाते हो ना, and when you come back, it takes you more than 30 to 40 minutes to be back in that same zone, and sometimes you are not even able to do so. और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा मैसिव इफेक्ट डालती हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, आई हैव द फास्टेस्ट इंटरनेट एट द मोमेंट, राइट? 1 GB का मैंने नेट लगाया हुआ है. मैंने क्यों लगाया हुआ है? डू आई रियली नीड दैट मच स्पीड? maybe not, but I know if I get any less speed and that cause me even a little amount of pain, right? Downloading speed नहीं हो रही, uploading speed नहीं हो रही, pages नहीं load हो रहे, मेरी multiple devices नहीं चल रही, that can lead to a chain effect of me being frustrated. उससे क्या होगा? While I'm waiting for something to download and upload, I will go to my phone, I will start scrolling on the internet, and one thing will lead to another, and eventually I will end up wasting 30 to 40 minutes or maybe an hour, right? इस तरह भी होता है. और फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा डेस्क है यहाँ पे, उस पर मैंने अपनी सारी चीजें रखी होती हैं, everything that I would need while I'm working except for toilet. वो नहीं मैं रख सकता, वो मुझे उठ के जाना पड़ता है, unfortunately, right? But everything is there, right? चार्जर्स, पानी की बोतल, कोई चीज, मुझे दवाई भी लेनी हो, मेरी नोटबुक्स, राइट? मेरी सारी प्रोडक्टिविटी का सामान is available. So when I'm working, there should be no distractions for me to even get up and walk out. Even little snacks, if I need it, it's right there, ठीक है? So everything is there in order
order for me to avoid getting up from the chair, because I know if I get up from the chair to go outside to get something, there is a high possibility that it's gonna end up costing me not only 5 minutes or 2 minutes but almost 30 to an hour. It happens with us all the time. मैं आपको उसकी सबसे बड़ी एंड दुखी बड़ी मिसाल देता हूँ, वो है coming up with what to eat for food, right? Usually लोग 3 टाइम का खाना खाते हैं, breakfast, lunch और dinner, ठीक है? And होता क्या कि every time you have to go out to get breakfast or lunch, right? आपको लगता है कि वो 30 minutes है, but that's not really the case, right? You go out, अपनी गाड़ी में बैठते हो, ठीक है, ड्राइव करके जाते हो, दिमाग में 100 आपके ख्यालात चल रहे होते हैं, आप लाइन में वेट करते हो, फिर लाइन में होता है कि अक्सर कैशियर स्लो होता है, कभी कभी आपका खाना वो स्लो बना रहे होते हैं, एंड दैट टेक्स अप योर मेंटल बैंडविड्थ. आपको उस बंदे पे गुस्सा चढ़ने लग जाता है, रास्ते में ट्रैफिक पड़ जाती है, एंड ऑल ऑफ दीज लिटिल अकरेंसेस दैट कम इनटू प्ले. एंड फिर आप खाना पकड़ते हो, आप खाना घर लाते हो और फिर उसको किसी शो के साथ लगा के खाते हो. ऑल ऑफ दीज थिंग्स इफ यू कंबाइन देम इवेंचुअली टेक्स अप टेकिंग वे मोर टाइम. दिस इज जस्ट यू डूइंग फॉर वन टाइम यूर ईटिंग, राइट? जस्ट ब्रेकफास्ट. फिर लंच के लिए भी आप ये करते हो, डिनर के लिए भी आप ये करते हो. इनफैक्ट दैट वन थिंग आई हैव कंप्लीटली एलिमिनेटेड इज के watching any TV show or movie while I'm eating. I do watch YouTube, ठीक है, और YouTube का फायदा होता है एक वीडियो क्लिप चलती है और वो खत्म हो जाती है इवेंचुअली. 5-10 मिनट की क्लिप देख ली, उसको मैं बंद कर देता हूँ. बट इफ आई एम स्क्रोलिंग, ठीक है, लाइक डूम स्क्रोलिंग, या फिर मैं लेट्स से कोई मूवी देख रहा हूँ, chances are I'm not gonna be done with that shit once I'm done eating. मैं खाना खत्म करूंगा, प्लेट श्लेट रखूंगा, उसके बाद मैं यूं सोफे पे बैठ के वो अपनी मूवी कंटिन्यू करूंगा, या फिर सोफे बैठ के डूम स्क्रोलिंग करने लग जाऊंगा. राइट? सो इट्स द लिटिल थिंग्स. सो अगेन यू गो आउट, यू ईट, यू कम बैक, सारी जो आपने ड्राइविंग की, अब काम पे वापस आए, अब आप काम पे फाइनली वापस आके बैठ गए, ठीक है, आपको दोबारा उस जोन में जाना पड़ेगा. राइट? नाउ यू हैव टू कैच अप वेयर यू वर. आप अपनी चीजें देख रहे हो, अपने टैब्स देख रहे हो, उसके बाद यू नो आप एक जोन में जाने की कोशिश कर रहे हो, यू ट्राइंग टू गेट बैक इनटू द पेस, एंड दैट आल्सो टेक्स लाइक 30 to 40 minutes. नाउ आई नो, चाहे तुम जितने मर्जी बड़े आइंस्टाइन हो, दिस हैपेंस टू एवरीवन, बिकॉज एक फ्लो स्टेट होती है ना, वो लाइक 30 to 40 minutes आप काम करते रहो, उसके बाद जाके डेवलप होती है. एंड दैट टू व्हेन योर माइंड इज एनर्जाइज, आपने नहीं अभी अपनी चाय पी है, कॉफी पी है, एंड यू आर रेडी टू गो इनटू वर्क. राइट? लेकिन कभी कभी ये भी होता है, हम बाहर जाते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं छोटी मोटी, हमारा दिमाग इतना टायर्ड हो जाता है कि वी आर नॉट इवन इन द सेम फ्लो स्टेट. राइट? सो अगेन दैट कॉजेज अ बिग इशू. आपको ये बात अभी चाइल्डिश लग रही होगी, लेकिन दिस इज रियली व्हाट सेपरेट्स अ अनसक्सेसफुल पर्सन फ्रॉम अ सक्सेसफुल पर्सन. सक्सेसफुल पर्सन इज ऑलवेज लुकिंग आउट टू मैक्सिमाइज टाइम. अनसक्सेसफुल पीपल वो टाइम को छोटी से छोटे डॉलर के पीछे भी सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं. मुझे इसलिए बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब मैं ग्रोसरी स्टोर जाता हूँ. आई नेवर वांट टू गो टू ग्रोसरी स्टोर. आई यूजुअली टेल माय वाइफ टू लाइक ऑर्डर द ग्रोसरीज, डिलीवर द ग्रोसरीज, या फिर अगर वो खुद जा रही है तो वो ले आए, ठीक है. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी इविल विद दैट, बिकॉज यू नो आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू वर्क एंड प्रोवाइड बैक टू माई कम्युनिटी, टू माई बिजनेस, एंड ट्राइंग टू ऑलवेज ब्रिंग रिजल्ट. मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वहां पे ज्यादा फोकस करूं, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट आई गो टू द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, पहली बात तो हम सामान देख रहे हैं, अच्छा ये पकड़ना है, वो पकड़ना है, वैसे भी सारा मेरी वाइफ को पता होता है, ये लिया वो लिया वो लिया, हम जा रहे हैं, ठीक है. उसके बाद अब लाइन पे खड़े हुए हैं, आगे एक बंदा है, उससे वो समझ ही नहीं आ रही, सेल्फ चेकआउट वो दबा रहा है, फिर किसी को हेल्प के लिए बुला रहा है, अब मैं बैठा हूं, या फिर कोई बंदा रिटर्न कराने की कोई चीज कोशिश कर रहा है, ठीक है, $2-3 की चीज है, उसमें 30 मिनट उसने पूरी लाइन को ख्वार कर दिया है, या फिर कोई बंदा खड़ा हुआ है, क्वेश्चन ही पूछी जा रहा है. ये ग्रोसरी की भी बात नहीं करा, अगर हम फॉर एग्जांपल बाहर टेक आउट करते हैं खाने को, मेन्यू पकड़ के सोची जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा उससे, और वो लाइक दे डोंट केयर कि पीछे कौन है लाइन पे, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट टॉट टू रिस्पेक्ट टाइम. राइट? दे ऑलवेज टॉट टू रिस्पेक्ट मनी मोर देन टाइम. दे आर विलिंग टू सैक्रिफाइस टाइम. ये ऐसे लोगों के पास बहुत टाइम होता है, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी यू नो, मैं अपने कोई हाई हॉर्स से नहीं आ रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ अनफॉर्चुनेट दिस इज. पीपल टेक टाइम फॉर ग्रांटेड. राइट? मनी, आई हैव मनी एंड आई कैन मेक सो मच मोर मनी, आई नो दैट, बट टाइम इज फाइनाइट टू मी. मेरे पास दिन में 24 घंटे, उसमें से 7-8 घंटे तो नींद के ही निकल जाते हैं, ठीक है. सो लाइक उसके बाद बचता ही क्या है. इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन यू थिंक अबाउट इट. और ये हमारे देसी हाउस होल्ड का भी बहुत ज्यादा मसला था ग्रोइंग अप. राइट? लाइक फॉर एग्जांपल माय मॉम, हम पढ़ रहे होते थे, ठीक है, मेरी अम्मी कमरे में आके, लो जी पप्पो ने ये कह दिया, इसके दुखड़े ये हो गए, उसका वो हो गया, स्टोरी लेके बैठ जाते यूं खड़े हुए दरवाजे पे, ठीक है. अब वो हम स्टोरी सुन रहे हैं, हमारी जो मेंटल कैपेसिटी थी, जो हमने जो सारा यू नो, मैं मैथ की प्रॉब्लम सोच रहा था, मैं सोच रहा था
ऐसे किस तरह लिखूं, अब मेरे हो रहा है कि अब जी फुप्पो को हमने किस तरह हराना है, या वो मतलब वो समझ रहे हैं ना कि मतलब बकवास बातें सारी दिमाग के अंदर आ गई। उसके बाद अम्मी जी अपनी दुखी कहानी सुना के निकल गई, अपना काम कर गई। अब बच्चे वहीं पे ख्यालों में फंसे हुए, सारा फ्लो ब्रेक हो गया। उसके बाद बच्चे क्या करते थे, हम उठ के हम कहीं बाहर गली में खेलने निकल जाते थे या वीडियो गेम पे लग जाते थे, बिकॉज अब दिल ही नहीं कर रहा, पढ़ाई करने का फ्लो ही तोड़ दिया सारा। और फिर कहते थे मार मार के पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, बगैरत पढ़ता नहीं है। अच्छा एक काम कर, जा जाके पढ़, उससे पहले काम कर, जल्दी से जा और ये कोने वाली दुकान से जाके कुलचे और दही लेकर आ। पढ़ाई भी कर ले बंदा, कुलचे और दही भी लेने निकल जाए। हमारे वहां मुआशरे में बहुत बड़ा मसला था, बच्चों को मार कुटा के मार मार के कहते थे पढ़ता नहीं है, और फिर पढ़ाई का कोई माहौल नहीं देते थे, राइट। सो ये छोटी छोटी चीजें होती थी जो कि बहुत मैटर करती थी, और जब हम बड़े हो जाते ना हमारी लाइफ में ये आदत बन जाती है, राइट। तो आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स द लिटिल थिंग्स दैट डेथ बाय 1,000 cuts that you don't realize that kill your productivity, right? So what you have to do is you have to eliminate anything that comes in the way of you delivering results to your client, or you're trying to build up a business, right? Or you're trying to reach out clients, तुम client acquisition कर रहे हो, कोई भी चीज उसके मिडल में आती है ना, you have to eliminate that shit, please। मतलब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज एलिमिनेट की अपनी लाइफ से, which is cigarettes, right? So I was never a chain smoker, like you know, मैं कभी कभी लग जाता सिगरेट पे, मैं छोड़ देता था। But this time, you know, when I started doing business, I quit my 9 to 5 job, you know, building a business became really hard, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया, फैमिली का, बच्चा रेस करना है, वाइफ साथ है, and you know, now alhamdulillah I have achieved a lot, but during those times when I was building, सुट्टे ठीक है, दिन में 6 भी पी लिए, 7 भी पी लिए, 8 भी पी लिए, लेकिन मैं कभी भी इससे ज़्यादा वैसे नहीं गया। बट द प्रॉब्लम विद सिगरेट वाज कि लोगों को लगता है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, लेकिन आजकल के ज़माने में आप कब्रों में बैठ के तो पीते नहीं हो, आपने उठना है सिगरेट के लिए, ठीक है। एंड बिफोर आई गो एनी फर्दर, द रीजन आई क्विट स्मोकिंग वाज बिकॉज ऑफ माय किड, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे मुझे फायदा क्या हुआ, राइट। सो आप उठते हो, ठीक है, आप अपना समय, जूते पहनते हो, बाहर निकलते हो, जाते हो, ये सिगरेट खोली, ये जलाई, अब आप सिगरेट पी रहे हो, ठीक है। अगर आपने गाने लगाए हुए हैं, या तो आप इधर उधर फिर रहे हो, फिर सिगरेट पिए। अब मेरे साथ ये मसला होता था व्हेन आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट्स, ठीक है, इज के मैं उठा, ठीक है, आजकल तो सर्दियां हैं, जैकेट पहन के पूरा बाहर जा रहे हैं, सुट्टा पी रहे हैं वगैरह, सोच रहे हैं। उसके बाद आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक एट माय फोन, डूम स्क्रॉल करना, ठीक है। अब सिगरेट पी के ना फॉर सम रीजन मुझे होता है कि लाइक वंस आई एम डन विद इट, आई वुड कम इन एंड लाइक मैं सोफे पे आराम से बैठ जाता था, यू नो, सिगरेट पी है, अभी जरा रिलैक्स हो गए थोड़ा सा। फिर डूम स्क्रॉलिंग करते करते मुझे पता ही नहीं चलता था कि कहां तक टाइम चला गया। एंड इवन इफ आई वुड कम बैक टू माय वर्क आफ्टर स्मोकिंग, टेकिंग अ क्विक ब्रेक ऑफ स्मोक एंड कमिंग बैक टू माय वर्क, माय फोकस वाज नॉट द सेम, इट वाज जस्ट नॉट देयर, राइट। सो अब जब मैंने उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है, आई रियलाइज दैट यार अब मैं 3-3, 4-4 घंटे भी अपने कंप्यूटर पे बैठ के काम कर लेता हूँ। आई डोंट नीड टू गेट अप एंड गो एंड टेक अ क्विक स्मोक ब्रेक, राइट। आई जस्ट लाइक वो जो बीच में मैं एक छोटा सा टाइम निकाल के बाहर जाता था ना, दैट वुड कॉस्ट मी एन आवर एवरी टाइम। आपकी फिर जब वापस आते हो, इट्स नॉट द सेम मेंटल कैपेसिटी, यू आर नॉट इन द सेम जोन, आप सुट्टा पी के रिलैक्स होके वापस आते हो, यू जस्ट नॉट देयर, आई एम टेलिंग यू, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द फूड थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट। खाने के बारे में लोग सोचते हैं बहुत ट्रिवियल चीज है, लेकिन आपको नहीं रियलाइज होता कि आप इसमें कितना टाइम वेस्ट करते हो। सो वन थिंग दैट यू नीड टू डू इज गेट बेटर एट योर डिसीजन मेकिंग, एज इन कि कोई चीज जो आपको डेली एक डिसीजन लेने पे फोर्स करिए ना, इट्स वेस्टिंग योर टाइम, यू हैव टू फाइंड अ वे टू एलिमिनेट दैट एंड और फाइंड अ वे सोल्यूशन टू ऑटोमेट दैट इन अ वे, राइट। नाउ इट्स गोना बी फनी मी सेइंग कि मैंने इसको किस तरह ऑटोमेट किया, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अब मेरी वाइफ है, वो मेरे लिए मील बना देती है, खाना बना देती है विदाउट मी इवन टेलिंग हर कि मैंने क्या खाना है दिन में। उसको पता होता है कि मैं किस तरह का खाना पसंद करता हूँ, एंड शी पुट इट आउट, ठीक है। वो बस कहती है खाना रेडी हो गया और मैं जाके खा लेता हूँ, राइट। नाउ शी डजंट नो दिस, बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, जस्ट हर डूइंग दिस एक्ट ऑफ गिविंग मी फूड एंड नॉट आस्किंग मी कि मैंने क्या खाना और मेरे से पूछ रही है, तो ये जो उसका एक्ट है ना खाना बनाने का, ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आपको लग रहा हो कि बचकाना बात है, बट रियली, बिकॉज इफ आई हैड टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू मेक एवरी डे फॉर 3 times a day, वैसे मैं 2 टाइम खाता हूं, बट लेट्स से 3 times a day, then imagine how much time that would take। मैं खड़ा होता, मैं यूं खाना बना रहा होता, ठीक है, फिर मैं यूं खाना बना के लाता, उसको खाया, उसके बाद मैं बैठ गया, लाइक देयर इज जस्ट सो मच टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स दैट हैपन इन द मिडल। सो बस उसने जब मुझे कहा खाना रेडी हो गया, मैं
उठा, मैंने जाके खाया, मैं वापस अपने काम पे आके बैठ गया. दैट जस्ट सेव्स मी सो मच टाइम. और अब लाइक अब आप कहोगे यार अब इसका सोल्यूशन ये थोड़ी कि हम शादी कर लें. मैं खाने की एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है. शादी आपने करनी है नहीं करनी वो आपकी मर्जी है भाई, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ. और ये चीज़ आपकी सिर्फ खाने में नहीं, आपकी ये और भी लाइफ की चीज़ों में हो सकती है. जैसे कपड़ों में हो जाती है, बंदा डिसाइड ही करता रहता है मैं क्या कपड़े पहनूं. जितनी आप अपनी डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट करोगे ना, उतना आप लाइफ में मोर प्रोडक्टिव होगे. अनदर थिंग दैट आई विल टेल यू इज रूटीन. नाउ जब बंदा एंटरप्रेन्योर होता है ना, यूजुअली मुझे सारे एंटरप्रेन्योर इन द मेकिंग ही देख रहे होते हैं, राइट. और 9 to 5 वाले भी जो देख रहे होते हैं मुझे, वो एंटरप्रेन्योर राउट की तरफ जाने वाले होते हैं. हमें लगता है कि जब हम एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे ना तो हमारे पर्सन टाइम की कंस्ट्रेंट हट जाएगी. वी कैन वेक अप एनी टाइम, स्लीप एट एनी टाइम. एंड व्हाइल इट्स फन एट द स्टार्ट, आई सून केम टू रियलाइज कि इट्स वेरी chaotic. I've been doing that in the last year and I'm telling you right now, it killed my productivity so much. Like it was a complete chaos, right. मैं कभी भी रात को सो रहा हूँ, कभी भी उठ रहा हूँ, किसी भी कॉल किसी टाइम पे ले रहा हूँ. और जब एक बंदे की रूटीन नहीं होती ना, उससे मसला ये होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कॉल कोई सुबह 10 बजे लेनी है, 8 बजे लेनी है, 9 बजे लेनी है, आपको पता ही नहीं अगर आप उस टाइम पे सुबह उठोगे कि नहीं. सो यू नीड टू like have restrictions of when you're gonna go to bed and when you're gonna wake up, especially when you're gonna wake up, because नींद तो कुछ लोगों को बहुत देर बाद आती है, जैसे मुझे बहुत टाइम में नींद आती है, ठीक है. लेकिन when you wake up can be up to you. So मैंने आपसे like एक बनाया हुआ strict rule कि I'm gonna wake up between the time frame of 9 to 10. That's when I'm gonna wake up, and usually I always wake up at like 9:30. ठीक है, that's when I always wake up, but that's just me, and I made that a habit too. So what I'm trying to say is productivity also comes from habit. You have to keep like fixed habits. When you have fixed habits, then you can decide your day way better, right? इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, नून के टाइम पे मैं क्या करूंगा, दोपहर 3 बजे मैं क्या करूंगा. I'm telling you, even if you're an entrepreneur, you're very successful, even at some point you need to have a routine to either grow your business more or enjoy the life that the entrepreneurship have given you. Enjoyment भी एक routine से आती है, and this is just what I have noticed in my life, right? So again, if you want to be more productive, let me just summarize it, right? You're gonna avoid this small things that get you off the desk. Only then you will be able to work like 12 hours a day, ठीक है, या 9 hours a day. This is the only way, I'm telling you, ठीक है. दूसरा, अपने जो खाने का मसला है ना, इसका कुछ हल करो, ठीक है. Very very important. Like don't be thinking every day what you have to eat for food. अगर आपके घर में you're fortunate enough कि अम्मी है, आपकी वाइफ है, या अगर आप अकेले भी रहते हैं, try to automate that damn process, ठीक है. Don't go out to eat every time. That's gonna kill your productivity. That's gonna kill any time you had in the day to do something productive, right? Another thing was routine को अपनी setup करना पड़ेगा. You have to bolt down your routine from both ends, as in you have to bolt down your sleeping and your waking time. That is very important and the only way that you could be more productive, ठीक है. And doom scrolling का भी मैं end में बात करता चलूंगा कि doom scrolling, मैं कभी कभी कहता था कि नहीं यार doom scrolling सही होती है, रात को सोने से पहले अगर बंदा कर ले, yeah okay, like ठीक है, कभी कभी चलता है. But the problem with the doom scrolling is not the scrolling itself, right? When you're doom scrolling ना, मैंने I've noticed and I've seen, मैंने इसको ऑनलाइन रिसर्च भी किया था कि जब आप doom scrolling कर रहे हो तो ना, your mind is really not active at that point, right? You're letting the Instagram, like it's going like एक slot machine की तरह चल रहे हो, तो you're always trying to find the next best thing, right? और उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उस मोमेंट के अंदर लिव नहीं कर रहे हो, तो आपका माइंड नम हो जाता है. और जब आपका माइंड नम हो जाता है ना, वो भी चीज आपको प्रोडक्टिविटी से खींच देता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन टू come back to that zone and back to that productivity, it takes you another 40 to 50 minutes. It happens, right? Or whenever you're doom scrolling, sometimes what happens, especially for boys, is कि कोई गंदी पिक्चर सामने आ जाती है. And this is such a sad reality of the world right now. Fucking OnlyFans is everywhere. It's everywhere. Like pornography, nudity, it's everywhere. छोटी छोटी चीजों में आ जाती है यार. And it's such a sad reality. And yeah, like कुछ मर्दों का इतना अच्छा self control नहीं होता, and eventually it leads them up to the corn side. They do their thing and everything, and once they do that, all the motivation खत्म. मोटिवेशन तो निकल गई ना सारी, कुछ पीछे बचा ही नहीं है. And I mean, I know I'm kind of talking disgusting here, but that's the truth. People do it every day. Even some women do it too, right? So yeah man, like you have to eliminate every time तुम्हें urgency आए ना, एक ये कोई चीज करने की, ठीक है, ये doom scrolling करने की, सिगरेट पीने की, या वीडियो गेम खेलने की, या कोई स्नैक खाने की, जाके try to eliminate that vice and try to put it back to work. Again, I know तुम लोग कह रहोगे बड़ा
easy for you to say. But एक हैबिट को बिल्ड करने में कहते हैं ना 21 दिन लगते हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूं एक हैबिट को एटलीस्ट 2 हफ्ते तो दो, 14 दिन तो दो. जब भी तुम्हें कोई अर्ज आए ना, अब कोशिश करो उसको तुम अपनी प्रोडक्टिविटी की आदत में डाल दो, राइट? लाइक मे बी इफ यू हैव एनी अर्ज टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, लाइक मे बी इफ द अर्ज ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम, आपको दिल कर रहा है, आपको स्क्रोलिंग करने का दिल कर रहा है, और आपको यू नो लाइक फजूल के टाइम जाया करने का दिल कर रहा है, आप बुक खोल के पढ़ने बैठ जाओ, सिर्फ पढ़ने बैठ जाओ. एंड अनदर थिंग आई वुड टेल यू इज वंस यू वेक अप 5-10 मिनट के बाद ना, जैसे ही तुम उठते हो, ट्राई टू डू समथिंग प्रोडक्टिव. लाइक ठीक है, बुक पढ़ने लगे उठ के, ठीक है, कोई नोट्स बनाने लगे कि दिन में तुमने क्या करना है, और जो तुमने कोई टास्क छोड़ा हुआ था पिछले दिन को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैड टू रीच आउट क्लाइंट, यू हैड टू रिप्लाई टू द क्लाइंट, स्टार्ट डूइंग दैट इंस्टेंटली. स्टार्ट योर डे विद वर्किंग, एंड वंस यू हैव डन दैट स्मॉल टास्क, देन यू गो एंड ब्रश योर टीथ एंड एवरीथिंग. एंड आई एम टेलिंग यू, ये छोटी सी जो चीज है ना जो तुम सुबह करते हो, विल सेट द ट्रेजेक्टरी फॉर योर होल डे. मैंने उसकी एज सच कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे, दिस इज जस्ट अ थॉट. जो मैं बस बैठा हुआ था, काम कर रहा था, ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा यार अब इस बचे हुए टाइम में मैं क्या करूं. आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ यूट्यूब वीडियो, एंड दिस वाज गोइंग ऑन माय माइंड, एंड दिस इज समथिंग दैट लाइक ये मेरे दिमाग में और मैं आपको बता रहा हूं. सो या, दिस इज अ प्रोडक्टिव थिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड इट्स गोना टेक सम टाइम. ट्रस्ट मी, इट्स गोना टेक सम टाइम, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, राइट, एलिमिनेशन प्रोसेस एक एक करके निकालो, यू आर गोना नोटिस हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम you have to give it to your work. ठीक है? So I hope this video helps you in some way, and if it did, don't forget to subscribe your boy Musa Khana, and don't forget to like this video. And I have a community, successful community of students. It's called Inner Circle, where I help students. I teach them a high-paying skills and how to get high-paying international premium clients over there, and how to research the market and find the right problem. And I have gotten a lot of results, as you can see on the screen. So if you're willing to join Inner Circle, then you can go to my Instagram below and message me the word join or circle, and my team will get back to you. Now a lot of people were saying कि यार आपके response नहीं आ रहा, automated है वगैरह. That is something that we're actively trying to fix because of so many people trying to message me, and eventually एक हफ्ते के अंदर हम इसको fix कर लेंगे. But still, if you're interested, please leave a message. और अगर आपका मैसेज नहीं पहुंचता तो आप मेरे email पे भी मुझे email कर सकते हैं, like if you're serious about it. But if not, then you know I provide free value here. Watch my last video on client acquisition. वो 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो थी, and that's a gold. You will not find it anywhere else. That's about it. I will see you guys in the next video. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Twerking